देवी सज्जनों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब में। और आज की हाईलाइट फाइट है जो कि स्टार ऑफ द इवनिंग बिटवीन टू स्टार कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान, और संग्राम सिंह जो कि भारत से है, उनका मुकाबला होने जा रहा है मोहम्मद सईद के साथ। ये वो मुकाबला है जो कि सदियों तक याद रहेगा। जिस तरह से जोशी साहब ये कहते हैं कि एडवांटेज हो सकता है कि मोहम्मद सईद की हो, लेकिन ये अब देखना होगा कि किस तरह से। देवी सज्जनों, इस समय पर एक बहुत ही खास मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर, जिनको के उनकी मसरूफियत में से समय निकाल कर आने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अभी चलते हैं इस समय पर रिंग साइड उस मैट रेसलिंग के साथ, जहां पर के प्रीति तैयार हैं एक बहुत ही स्पेशल इंटरव्यू के साथ। So ladies and gentlemen, I know you are looking forward to the blockbuster match of the night. India's Sangram Singh to take on Rustam Sialkot, Mohammad Saeed of Pakistan. लेकिन रुकिए, एक खिलाड़ी को मैच पर आने में समय लगता है और तैयारी जो है वो घर से ही शुरू हो जाती है। तो संग्राम जी की तैयारी कैसी है उसके बारे में बात करने के लिए उनकी लाइफ पार्टनर बॉलीवुड एक्टर पायल रोहातगी मेरे साथ है। पायल, are you excited to be here? I'm very, very excited to be here because I'm going to be watching Sangram, play a match after 6 years. And so I was like, Mummy, aap bhi aao, brother, aap bhi aao, because Sangram's going to be playing a match after 6 years. Yay! So we all are really, really looking forward for it. Absolutely. We're all thrilled to see Sangram in action on the match tonight. लेकिन जैसा आपने बोला 6 साल का थोड़ा गैप भी आया है और दोनों जो ये रेसलर्स आमने सामने होंगे उनमें एज गैप भी काफ़ी है. But that doesn't take away the credit from Sangram because he works so hard on his fitness and you are a witness to that day in, day out. Yes, so the best thing about Sangram is that he believes in 2 things: end, efforts never die, and no means next opportunity. That's his slogan. And now seeing all his efforts come to reality after 6 years is very, very great because he wants to inspire the youth in India to go towards sports, towards wrestling. And I'm very glad that he's got a platform like UAE to kind of, give it to the youth out here. I'm very glad with the Dubai Sports Council giving us an opportunity. Very, very glad that Fit India supported Sangram's vision because it's very important that the youth of India as well as all over the world go towards sports. And Sangram is such a fantastic brand ambassador of the sport. लेकिन संग्राम के लिए, उनके closed ones के लिए, उनकी family के लिए, wrestling क्या है? Does he breathe wrestling all the time? Yes, wrestling is like the art of never giving up. So for him, wrestling is his passion. And as his wife, I have realized that a sports person gives a lot of importance to the sport that is his passion. So मुझे उसके और उसके sport के बीच में, उसके passion के बीच में नहीं आना चाहिए. And I have to understand. क्योंकि जब मैं काम कर रही हूँ set के ऊपर as an actress, I have to understand that he will understand. So similarly now, I have to understand that this is his passion and I have to let him breathe. Absolutely. बस एक final question पूछूंगी, कभी थोड़ा सा crisis हुआ है कि wrestling में choose करो या मुझे? No, I think I have crossed that line. I think we both have crossed that line because when I'm working in reality shows, he knows how to give me that space, and when he is working on a project, and this is a wrestling project after 6 years, I know where to give him space. And we love his dedication and we are all keenly looking forward to that big match of the night. Let's go back to the commentators. देवी सज्जनों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब में। हम इस समय पर अपनी स्टार इवनिंग का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। एक ऐसी फाइट जो कि एक प्रोफेशनल राइवलरी, ट्रेडिशनल राइवलरी है। किसका बनेगा सैटरडे सुपर सैटरडे, उस पर सबकी नजरें संग्राम सिंह वर्सेस मोहम्मद सईद। सीने का जाम लगाकर अखाड़े में 4 चांद लगाकर, दर्द को टोपी पहनाकर, दंगल को अपनी जान बताकर। इंडिया, इंडिया। And now, wrestling fans, get ready for our highlight of the night as we present Fight Card 5 and the World Pro Wrestling Hub main event of the evening.
This matchup features a rivalry that transcends borders and ignites passions around the globe. From India, we have Sangram Singh, a two-time Pro Commonwealth Heavyweight Champion, ready to face against Muhammad Saeed of Pakistan, the Rustam-e-Sialkot and Pakistan Wrestling Champion. This is more than just a wrestling match. This is a clash of nations, and the excitement is palpable. Can you feel the thunder? It's India versus Pakistan right now! Introducing your first warrior, fighting out of the orange corner from India, the one, the only, Sangram Singh! And his opponent, fighting out of the green corner from Pakistan, please welcome Muhammad Saeed. Ladies and gentlemen, before we begin, I have one question for you and one question only. To all those watching in amazing Dubai and incredible India, and the millions watching around the world, World Pro Wrestling Hub family, are you ready? Shake hands. Right there, we have a clean match. Okay, guys? Yeah. पाकिस्तान ये मुकाबला पहलवान, एक्टर, मोटिवेशन स्पीकर और अब फिर से पहलवान, यानी 6 साल के बाद शानदार वापसी और बॉडी वेट 90 किलोग्राम के आसपास, करीब 40 साल की उम्र होने जा रही है और कुश्ती को अखाड़े से 5 स्टार कल्चर तक लेकर आए हैं संग्राम सिंह। ग्रीको रोमन शैली की कुश्ती के 96 किलोग्राम के पहलवान भी रहे और 2003 में नेशनल रांची में जो हुआ था वहां पर भी इन्होंने पदक हासिल हुआ था। 2005 में ऑल इंडिया पुलिस गेम्स का पदक इन्हें हासिल हुआ। 2005 में सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप बुडापेस्ट हंगरी में इन्होंने भाग लिया और वहीं पाकिस्तान के रुस्तम-ए-सियालकोट नेशनल चैंपियन, पावर के प्रतीक, उम्र 23 साल, बहुत करने का जज्बा और 8 से 10 किलोग्राम वजन अधिक है उनका संग्राम सिंह की तुलना में। और आर्मी के नुक्की पहलवान से पिछले दिनों इन्होंने 47 मिनट तक कुश्ती लड़ी थी। क्या बात है। तो इसका मतलब है कि दमखम वाली कुश्तियां लंबे समय तक लड़ने का एक अच्छा खासा तजुर्बा है। यहां अगर संग्राम सिंह हराते हैं इन्हें तो वाकई दुबई के इस मंच पर स्टार स्टेटस इन्हें हासिल हो जाएगा। जी हाँ, अभी तो ये पहला राउंड है जो कि अभी अपने आधे टाइम तक जा रहा है। संग्राम सिंह और मोहम्मद सईद एक दूसरे को एक तरह से भांपते लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी श्रीमती दुआएं ईश्वर की लेती हुई और एक मनोकामना उनकी कि उनका पतिदेव यहाँ जरूर जीते। पायल रोहतगी थी अभी थोड़ी देर पहले। जी हाँ, देखना यह है कि वेट एडवांटेज है या एक्सपीरियंस की एडवांटेज आती है। चेहरे पर उदासी भी और वो समझ नहीं पा रही है कि क्या किया जाए, कैसे दुआएं दी जाए, क्योंकि जो संग्राम सिंह जो है उनके संग्राम सिंह जिसमें लाखों करोड़ों भारतीयों की दुआएं छिपी हुई हैं, ये पायल रोहतगी के चेहरे की थोड़ी अभी उदासी है। मुझे लगता है वक्त के साथ साथ पट किया खूबसूरती के साथ और यहाँ पर गिराने में कामयाब, तो उन्होंने बटोरे और इसके साथ ही बारंदाज लगाने के लिए प्रयास करती हुई और ये बारंदाज लगाया उन्होंने खूबसूरती के साथ। यह मुकाबले को उन्होंने पलटा, स्थिति को पलटा और यहाँ पर एक समय पिछड़ रहे थे 0-2 से, अब 4-2 से आगे हो गए हैं। जो एक ही दम से बिजली कौंधी, पलक झपकने से पहले ही
हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने अपने पासे को पलटा, अपनी किस्मत को अपने हक में एक बार फिर से किया। संग्राम सिंह सीधा ही 6 पॉइंट्स पर पहुंच गए हैं। मोहम्मद सईद हालांकि बाहर में काफी है, लेकिन फिर भी वो फुर्ती नहीं उनमें दिख रही जो कि संग्राम सिंह में है। एक बार 2 अंक आगे बढ़े जरूर थे, लेकिन ऐसी बिजली को दी कि हम देख सकते हैं कि सीधा ही वो 4 अंकों की बढ़त से आगे। आज मैंने दुबई में आज इनकी प्रैक्टिस देखी और वहां देखा इन्होंने करीब आधा घंटा ट्रेडमिल किया, आधा घंटे अन्य एक्सरसाइजेस की। भूपेश इनके कोच हैं, उनके साथ उनकी देखरेख में उन्होंने बहुत अच्छी कोचिंग की है। वहीं मोहम्मद सईद के जो कोच हैं अजहर, वो भी 2007 के सुपर हैवीवेट वर्ग के एशियन चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनके कोच। तो जाहिर सी बात है अच्छा खासा परंपरा दोनों के फेरिस्त में। लेकिन जहां संग्राम सिंह क्योंकि वापसी कर रहे हैं लंबे समय के बाद, उनका एक कड़ा इम्तिहान है यहाँ। और यहाँ गहरी पट उनके खिलाफ, बाद में ऐन वक्त पर इरादा बदला और यहाँ देखिए पीछे आकर एक साइड साल्टो का एक सुनहरा मौका है मोहम्मद सईद के पास। चेयर अप करती हुई पायल रोध की। इस समय पर देख सकते हैं कि किस तरह से पहला राउंड समाप्त हुआ है। सीधा ही 4 अंकों की बढ़त हुई है वहां पर। और देखना यह है कि किस तरह से इस फाइट को आगे लेकर जाएंगे। दुनिया चाहे जो भी कहे, लेकिन अंत में शायद एक्सपीरियंस जीते जो कि संग्राम के पास ज्यादा है, या फिर वेट एडवांटेज देखा जाए तो इस समय पर सईद के पास साइड साल्टो किया था, साइड साल्टो के साथ गिराया था तो खतरा मंडरा रहा था। ये काउंटर अटैक किया उन्होंने, इकहरी पट की और इकहरी पट करने के साथ ही संतुलन बिगाड़ा। दोनों घुटने मैट पर लगे, 2 अंक बटोरकर उन्होंने पहले बढ़त कम की और उसके बाद भारद्वाज लगाया और उसके बाद बढ़त बना ली अपने पक्ष में। दर्शक दीर्घा में हर्षोल्लास का वातावरण है इस समय पर। जिस तरह से चल रहा है वो देख सकते हैं कि सभी लोग। मैरी कॉम ओलंपिक मेडलिस्ट और 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सिंग की, वो भी इस समय पर देख रहे हैं इस उत्साह को। बिजली की तरह कौनते हुए हमने देखे यहाँ संग्राम सिंह। देखना यह है कि अगले राउंड में क्या होता है। 4 अंकों की बढ़त, हर्षोल्लास का वातावरण है इस समय पर इस पूरे स्टेडियम में। व्हाट यू कॉल इट इज इलेक्ट्रीफाइंग। क्योंकि संग्राम सिंह जो है ग्रीको रोमन शैली के पहलवान रहे हैं। साल्टो, भारद्वाज, कुंदे उठाकर थ्रो करना इनके पसंदीदा दाव है। और यहाँ पर इकहरी पट करना चाहते थे, उत्साह में ज्यादा विश्वास से कम, लेकिन वहीं दबोच लिया उनको मोहम्मद सईद ने इकहरी और उसके साथ ही वो कुंदे उठाने का प्रयास करते हुए। लेकिन गिरफ्त में है उनका बायां पांव जो संग्राम सिंह नहीं छोड़ रहे। जी हाँ, ये बहुत ही शानदार डिफेंसिव पोजीशन है जो कि अगर अच्छी तरह से की जाए तो बहुत मुश्किल होता है वहां पर पॉइंट स्कोर करना। लेकिन हाँ, एडवांटेज मिल गई, जोर यहाँ पर लगाने में कामयाब हुए और 2 अंक और अर्जित किए मोहम्मद सईद ने। डिफेंसिव पोजीशन में है, लेकिन क्योंकि ये मैच आगे नहीं जा रहा है तो रेफरी ने उन्हें एक बार फिर से मैट के अंदर आमने सामने खड़े होने की हिदायत दी। वर्क और वर्कआउट को बहुत तवज्जो देते हैं संग्राम सिंह और उनकी पत्नी, और वो शाकाहारी है और अपने घर का वो कुछ छिपा रहे थे मुझसे। मैंने कहा भैया क्या है आप? कहते नहीं यार नहीं, रहने दो मनोज जी, आप रहने दो। पता चला देसी घी का डिब्बा था। अरे वाह। वो खाने के साथ अपना देसी घी का डब्बा ले जाना नहीं भूलते कहीं भी। एक बार फिर से आमने सामने, यहाँ देखना ये है कि किसको एडवांटेज मिलती है। संग्राम अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हुए, लेकिन वहां पर देखा जाए तो थकान की खींचा है मोहम्मद के भी चेहरे पर खींच रही है। तो एक बार फिर से 2 अंक भारद्वाज लगाया खूबसूरती के साथ। संग्राम सिंह ने अपनी स्थिति को उन्होंने मजबूत किया और इस तरह से 10-4 से आगे हो गए इस मुकाबले में। बहुत ही रोमांचक संघर्ष और मैं कहूंगा कि साल्टो दाव संग्राम सिंह का, लेकिन कोशिश हर बार शहीद द्वारा हुई और भारद्वाज लगाया। और आज उन्होंने ये भी बताया मुझे कि ज्ञान सिंह जो उनके साथ कोच की हैसियत से कैंप पे हुआ करते थे, ये टेक्निक उन्होंने उनसे ही सीखी है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी कोच के प्रति उनकी मैं कहूँगा सहृदयता है, जिसे वो स्वीकार करते हैं। कदकाठी में मोहम्मद थोड़े ज्यादा चौड़े हैं, भारी भरकम भी लग रहे हैं, लेकिन ज्यादा फुर्ती नजर आ रही है संग्राम सिंह में। जिस तरह से बहुत ही शानदार तरीके से मूव करने की कोशिश की, लेकिन मुश्किल में पड़ सकते थे संग्राम। ये एक ऐसा मौका था जहां पर कि हो सकता था कि उनकी सेहत के लिए हानिकारक होता।
लेकिन फिर भी बच गए समय पर। 6 अंकों से आगे है संग्राम। ये मानना होगा कि आप लंबे समय के बाद वापसी कर रहे हैं, आप 40 की उम्र को टच कर रहे हैं, उसके बावजूद आपके जज्बे और जुनून में कोई कमी नहीं आई है। आप पहलवान होने के साथ साथ एक्टर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेकिन उसके बावजूद कुश्ती का रोमांच में और इंटरेस्ट जो है वो अभी तक बना हुआ। WFI के पहले ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, एंटी टोबैको इंडिया के चेहरे रहे हैं, फिट इंडिया के आइकन रहे हैं, और इसके अलावा स्वच्छ भारत के ब्रांड एम्बेसडर और विकसित भारत के भी ब्रांड एम्बेसडर, जो प्रधानमंत्री का सपना रहा है। और इस राउंड का हुआ समापन, और यहाँ मोहम्मद सईद जो कि उन पर नजरें हैं सबकी, क्योंकि भारी भरकम है और स्टेमिना भी ठीक ठाक है अभी तक। तो देखा जाए तो उनके शरीर के भार के हिसाब से मुझे लग रहा था कि शायद थकान दिखे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन दिस एक्शन रीप्ले कोशिश पूरी कर रहे हैं, और संग्राम ने बहुत ही शानदार तरीके से इस मूव को किया। जो काम शहीद नहीं कर पाए थे, उस काम को संग्राम सिंह ने करके दिखाया है। यहाँ खतरा मंडरा रहा था, लेकिन यहाँ देखिए संग्राम सिंह बाल बाल बचे, और उसके बाद ये काउंटर अटैक खूबसूरती के साथ मोहम्मद सईद द्वारा। सियालकोट की जनता अगर ये देख रही है तो वो भी खुशी से झूम रही होगी, लेकिन बाद में उनके चेहरे पर उदासी भी लाने का काम किया संग्राम सिंह ने, खास तौर पर एक अच्छी, मैं कहूँगा, काउंटर अटैक करने के साथ।